हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पूनम भाटी फ्रॉम लिटिल एंजल स्कूल। आप सब जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई नो यू ऑल आर फिट एंड फाइन. Yes. So you have a lots of enjoy at your home. Yes. Okay student. So students, welcome back to the video classes at Little Angel School at home. Okay. Make sure that you have your computer textbook with you with all the time while attending the class. So please take next 5 seconds to keep your book ready. Okay. 5, 4, 3, 2 and last 1. I hope you all are ready. Yes, very good students. So let's get start. Today we are going to cover the day 1 of your exercise of your chapter number 3. Okay, because we are already covered the chapter number 3 theory in the previous video. Okay, now in this video we are going to cover the exercise because this is the exercise time. Okay, तो आज हम आपकी बुक की एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं जिसका डे 1 कवर करेंगे. ठीक है, हम आपकी बुक की एक्सरसाइज 2 डेज में कवर करेंगे. फर्स्ट डेज में आज हम हाफ पोर्शन एक्सरसाइज कवर करेंगे एंड सेकेंड डे में हम आपकी रिमेनिंग एक्सरसाइज कवर करेंगे. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. So this is your chapter 3, that is the computer memory and storage devices. Okay student, and your chapter exercise will be like in page number 20, page number 24, page number 25 and page number 26. Got it? Okay, so let's start with the exercise of your page number 20. Okay, so let's start with the page number 20 exercise. So student, this is the page number 20 exercise, that is the think and answer. Okay, now in this exercise you just think and you have to write the correct value in the given space. Okay, now let's start with the first value, that is the 3 MB is equal to KB. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी हमारी KB MB है, ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसकी फुल फॉर्म और इसको विद वैल्यू आपको मैंने समझाया था. फिर भी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. KB इज इक्वल टू किलोबाइट, MB इज इक्वल टू मेगाबाइट, TB इज इक्वल टू टेराबाइट, PB is equal to petabyte. Okay, so let's start with the values. So first value 3 MB. So first of all you have to remember that 1024 KB मैं आपको बता चुकी हूँ इज इक्वल टू 1 MB. ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था. तो आप इसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को एक्सपेंड कर दीजिए. अब 1024 किलोबाइट इंटू में 3, दैट इज़ द आंसर इज, देखिए दिस वन 1024. अब इंटू में 3 बिकॉज यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज 3 MB. सो इंटू में 3 इज इक्वल टू 3072. Okay, so value is 3072. Value is 3072. Okay, so you have to write the correct value, that is the 3072. आंसर इज 3072 लाइक दिस. आपको इसी तरीके से सारी वैल्यूज निकालनी है. 4 TB इज इक्वल टू is equal to what? 1024 GB is equal to 1 TB. So you have to multiply 1024 into 4. Okay, you have to now third you have to multiply 1024 byte into 7, and in the fourth question you have to multiply 1024 terabyte into 8. Okay,
So I will show these answer in the next slides. Okay, so these are the answer of previous slides, students. So these are the values. So let's start with the first value 3 MB इज इक्वल टू 3072. ये मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बता चुकी हूँ. नाउ नेक्स्ट इज 4 TB इज इक्वल टू 4096. ये कैसे आया? 1024 इंटू में 4. ओके, बिकॉज 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट. तो जब आपको 4 टेराबाइट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो आपको 1024 को 4 से मल्टीप्लाई करना है. लाइक दिस 7 KB इज इक्वल टू 7168. तो इसमें भी आपने यही करना है 1024 इंटू में 7. ओके, नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है दैट इज द 8 टेराबाइट 8192 टेराबाइट बिकॉज 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट. एंड हमको 8 पेटाबाइट की वैल्यू निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1024 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो डैट हमारी वैल्यू निकल कर आए. ठीक है, तो वैल्यू इज 8192. तो दीज आर द आंसर. ओके, दीज आर द करेक्ट वैल्यू ऑफ these 3 MB, 4 TB, 7 KB and 8 TB. So let's start with the now come in next page exercise. So student, this is the page number 24 exercise. Okay, the exercise time will is there. The first exercise of page number 24 is name the following. So you have to mention the name according to the given clue and these are the clues. These, ठीक है, आपको एक क्लूज दे रखे हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको नेम मेंशन करना है. तो स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर. सेकंड इज 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. आप कोई भी लिख सकते हैं, कोबोल और बेसिक. ठीक है, मैंने आपको बताया है स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है कंप्यूटर की, वो आपको बतानी है इसमें. 2 यूनिट्स ऑफ मेमोरी, आपको मेमोरी की 2 यूनिट बतानी है. 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, आपको मेमोरी के 2 टाइप बताने हैं. 2 सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, और कोई भी 2 स्टोरेज डिवाइस मेंशन करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर ऑफ दीज क्लूज. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ द प्रीवियस स्लाइड. ठीक है, मैंने जो प्रीवियस स्लाइड आपको शो की थी क्वेश्चन की, उनके आंसर मैंने यहाँ शो किए हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर. क्या होती है स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर की? यस, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर इज मेमोरी. MEMORY. हम मेमोरी में ही स्टोर करके रखते हैं ना सारी चीज़ें, और जितना भी हमारी प्रोसेसिंग होती है वो सारी मेमोरी में होती है. तो आंसर इज मेमोरी. ओके, द सेकेंड इज 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. व्हाट इज द 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? दैट इज द COBOL, COBOL, COBOL and BASIC, BASIC, BASIC. ओके, थर्ड इज 2 यूनिट्स ऑफ मेमोरी. बेटा जी मैंने बहुत सारी यूनिट्स बताई है मेमोरी की, आपकी बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, एटाबाइट, पेटाबाइट, बट आपको उसमें 2 यूनिट्स लिखनी है मेमोरी की. तो एक बात बता देती हूँ, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है बेटा वो बेसिकली हमारी MB और GB में रहती है. क्यों? क्योंकि किलोबाइट बहुत स्मॉल यूनिट हो जाती है. ठीक है, और जो ये पेटाबाइट, योटाबाइट होते हैं बहुत लार्ज यूनिट हो जाते हैं. जो हम बेसिकली साइंटिफिक पर्पज़ के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जिनमें हमें बहुत सारी स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, वहाँ हम ये यूनिट यूज़ करते हैं, लाइक पेटाबाइट, टेराबाइट. ओके, टेराबाइट यूज़ कर लेते हैं, पेटाबाइट और ये जो योटाबाइट होती हैं. नाउ तो इन कंप्यूटर बेसिक जो यूनिट्स होती हैं वो होती हैं MB, मेगाबाइट, एंड द GB, गीगाबाइट. ठीक है, नाउ द 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी. First one is the primary memory and second one is the secondary memory. Okay, primary memory is the main memory which is directly accessed by the CPU, and secondary memory is the external memory which is the permanent memory. ठीक है, 2 secondary storage device. 2 secondary storage device कौन से होते हैं? हार्ड डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क. तो these are the answer of the previous slides. So again this is the page number 24 exercise. Okay, and again the correct value have to written in the given space. Okay, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इनको कैसे सॉल्व करना है. आपको मैं बता चुकी हूँ कि जो 1024 स्मॉल बाइट्स होती हैं उनको हम 1
KB बाइट 1 MB बाइट और 1 मेगाबाइट इसके ऐसे इक्वल होती हैं। तो आपको जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाइड दीज 1024 वैल्यू विद दिस वैल्यूज़, ठीक है। तो आपको देखो जैसे बाइट है वो 1 KB के इक्वल होता है, 1024 बाइट जो होती है 1 KB के इक्वल होती है। तो आपको क्या करना है 1024 बाइट को 3 के मल्टीप्लाई करना, जो वैल्यू आएगी वो आपकी 3 KB इज इक्वल टू डेट बाइट्स होंगी, ठीक है। इसी तरीके से आपकी 1024 किलो बाइट्स को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 1024 मेगाबाइट को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 1024 गीगाबाइट को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 1024 टेराबाइट को 11 से मल्टीप्लाई करना है। So I will show the answer of the next slide in the next slide, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इनका आंसर शो करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। दीज आर द आंसर ऑफ द प्रीवियस स्लाइड्स। ये प्रीवियस स्लाइड्स के बेटा जी आंसर है। सॉल्व बिल्कुल मेथड वही है जो मैंने आपको पहले फर्स्ट स्लाइड्स में बताया था कि आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे बाइट है तो जो है बाइट स्मॉल यूनिट है, किलो बाइट आपकी थोड़ी लार्ज यूनिट है इस बाइट से, ठीक है। तो आपको क्या करना है 1024 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 3072 लाइक दिस, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लाइक दिस किलो 1024 किलो बाइट इंटू 1 मेगाबाइट। तो आपको क्या करना है 1024 को 6 से मल्टीप्लाई करना, तो आपकी वैल्यू आएगी इस तरीके से, ठीक है। ये वाली थर्ड जो आपकी आ रही है वैल्यू 4 GB की, वो आएगी आपकी 1096 मेगाबाइट, बिकॉज आपने मल्टीप्लाई किया 1024 मेगाबाइट को 4 से, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ गई 4096 मेगाबाइट, ठीक है। लाइक दिस आपको ये भी फोर्थ में भी यही करना है। 8 टेराबाइट इज इक्वल टू 8192, ठीक है। 8192 कैसे आया 1024 गीगाबाइट है, उसको आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आपकी निकल के आई 8192, ठीक है। नाउ लास्ट है 1024 टेराबाइट को आपने 11 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू निकल के आई 11264, ठीक है। सो हम वी कैन से दैट 11 पेटाबाइट इज इक्वल टू 11264 टेराबाइट, ओके। So these are the answer of the previous one. So students this is enough for today video, okay, day 1 video. Now we will discuss the remaining exercise of your chapter 3rd in the day 2 video, okay. So students, thank you so much. Stay home, stay safe, take healthy food, okay, take care yourself, please stay home, stay safe, wash your hand properly, okay. So have a nice day, bye bye.